سی صبح صبح میٹنگ مز ونان کی لٹیر آمت تم یمن عام شہرین لوٹان چھا ٹھیک؟ ٹھیک جناب. شام تیل روز تیار. السلام علیکم. لال صاحب کیا خارج ہے؟ فون کیا کرو؟ چھم دلاس چھم قرار بہاری ناستا یار پیارے بہاری ناستا یار پیارے خبر چھ ماں بانتظار سرس کرن کیا چھمیت بہار زخم جگر بل یار ہاوئی بہاری ناستا یار پیارے بہاری ناستا یار پیارے تک چھم دلاس چھم قرار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر احساس کشمیر کا. دودھ پتھر میں سب سے پہلے انٹرنیٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے. آج آپ ریٹ نکالیے کہیں پہ بھی جا کے آپ دیکھیے وومن امپاورمنٹ کتنا ضروری ہے. جب ایک ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے نا وہ پورا سماج پڑھا لکھا ہوتا ہے, پورا خاندان پڑھا لکھا ہوتا ہے. جو ہے جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے. جو دودھ پتھری ہے یہ بےحد خوبصورت جگہ ہے. آداب ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں پروگرام کی ہوسٹ یاسمین منظور. ناظرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دودھ پتھری کی عوام سے بات چیت جاری ہے. پچھلے ایپیسوڈ کو ہمیں وقت کی کمی کی وجہ سے روکنا پڑا تھا, تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں مزید کیا کچھ کہنا ہے ان کا. اور جیسا کہ ہم سب مانتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہر ایک ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, تو اس حوالے سے بڈگام ضلع کتنی ترقی کر چکا ہے اور کیا کچھ کرنا باقی ہے. تو ایجوکیشن کی بات اگر کرے تو ہمارا جو کشمیر ہے ماشاءاللہ سے کافی ترقی کر رہا ہے ایجوکیشن میں, اور ہماری کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو ماشاءاللہ و تبارک دونوں میں ہی بڑی قابلیت ہے, کافی صلاحیت ہے. اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی اس میں کافی سپورٹ کر رہی ہے, ہمارا وومن امپاورمنٹ میں کافی سپورٹ کر رہی ہے ہر چیز میں. کیا کہتے ہیں, بچیوں کو جو ہے موقع فراہم کرتی ہے سو دیٹ دے کین پارٹیسپیٹ ان ایوری گیم اور ایوری اسکل, کچھ بھی ہو ہر چیز میں ہمیں موقع فراہم دیا جاتا ہے. پرسنلی جو ہے ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے ہماری کالج کی, دیٹ سبرینا, شی آلسو ٹک اے پارٹ ان سائیکلنگ ان یونیورسٹی اینڈ شی آلسو گاٹ اے پوزیشن. تو گورنمنٹ ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کر رہی ہے اور ایجوکیشن کا ماحول کافی اچھا ہے الحمدللہ ہمارے جو کشمیر میں, اور اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے. ڈیولپمنٹ سیم آلموسٹ, اگر اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے, دیکھو یوتھ ایک بیک بون ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا, ایک کمیونٹی کا, ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کا, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے کلچر ہو, چاہے یہاں کا ہیریٹیج یا بھی ہمارا بزنس ہو. تو یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک بڑا رول ہے. لائک میں نے بھی اس سے پہلے بھی بولا کہ آپ لوگوں کو جتنی بھی نئی اسکلز ہیں آپ ایک
क्रिएटिव माइंड लेके चलो. आप उस डेवलपमेंट पे आपको इनिशिएट करना है. अपने प्रपोजल्स और अपनी रिप्रेजेंटेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट है. वी डोंट हैव गुड रिप्रेजेंटेशंस. हम हमेशा जब जाते हैं हमारा अप्रोच गलत होता है. हम चाहते हैं कि भाई कोई भी तरीका हो, हम या तो प्रोटेस्ट करते हैं कहीं रोड पे, या जाके कहीं पर नारे देते हैं, या कुछ पंपलेट्स लेके कुछ वैसा सीन क्रिएट करते हैं. तो कोशिश करो कि आप पोलाइटली जाओ, जो कंसर्न ऑफिसर है या आपका जिसके साथ आपका काम है उसके पास जाओ. एक बार नहीं 10 बार भी जाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है. आप जाओ, अप्रोच करो. एक साथ हर एक चीज नहीं होती है. हमें ये देखना है कि पहले की जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह का है. असल में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, हम एक होता है रिवायती तालीम जो हम हासिल करते आए हैं, या हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो हासिल करती आए हैं, या हम आज मुझे नहीं लगता कि हम जो कुछ भी आज जो इंटरनेट का दौर है, आज जो ये दौर मॉडर्न दौर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर 10 साल के बाद किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चंस वगैरह याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप गूगल पे टच करो मिल जाएगा आपको. सवाल है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या ये सिस्टम आगे चलकर हमारे यूथ को रोज़गार दे पाएगा? क्या ये आगे चलकर कुछ इस एजुकेशन के सहारे कुछ कर पाएंगे? सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़ी बड़ी चेंजेस की ज़रूरत है, जो कि सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी लगता है. इसमें एक बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में एजुकेशन है उसमें स्किल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है. स्किल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम आगे चलकर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं बनते हैं. हमें नौकरियों की तलाश नहीं रहते हैं कि हम अपने बल पर कुछ कर पाए. इस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहिए. I would love to say that, I'm not making any loopholes here about education, but rather I'll say that, sometimes what happens is that, being a educated one, who we call educated, or I would say that you have a degree in your hand and yet you fumble when it comes to write anything. Sometimes what happens is that in classrooms you act like a typewriter. You need, that's all head scratching, like you cram things. So I tell you that if you think that, I had to be an educated, so you must know that what that actually means. So I tell you that, if we just to talk of cramming, that's all head scratching. I tell you that we must shake our feet from the dust of cramming. So we must not need cramming anymore. So we must learn the actual message of education. Or I just to tell you that, if you have degree in your hand and that degree all ends in smoke when it comes to writing. You fumble, you disturb while writing, speaking. So it's all about, we need to get actual message of education. Thank you. जो प्राइवेट स्कूल्स है उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स. द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ ओनली वन कि परफॉर्मेंस चेक्स नहीं हो रहे हैं. अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखें वहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस चेक्स है नहीं, कोई नहीं पूछने वाला क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कोई नहीं करता उनकी परफॉर्मेंस को. यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए हायर एंड फायर. अगर अच्छे से काम किया तो हायर करो, अगर नहीं तो फायर देम, उनको डिमोट करो. अगर आप प्रमोट करते हो कई टीचर्स को उनकी परफॉर्मेंस के लिए, तो डिमोशन के लिए भी कोई प्रोसीजर रखो. अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करे तो डिमोट देम, या तो टोटली प्राइवेटाइज करे इंस्टीट्यूशंस को, ताकि जो हम से मुतफिक है. अगर हम पिछले 2 साल जब से हमारे पास एलजी हुकूमत आई है, तो हमारे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए, चाहे वो फिर टीचर्स के हवाले से हो, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से हो. तो आप देख रहे हैं कि क्या आप इस बात से मुतफिक है कि जो सरकारी स्कूल से अब बच्चे निकलते हैं वो भी उस लेवल की परफॉर्मेंस दिखाते हैं जो एक प्राइवेट स्कूल से निकला हुआ बच्चा दिखाए? सही बात है, जिसे पढ़ना होता है वो कहीं पे भी पढ़ेगा. जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स हमें है, वेल क्वालिफाइड होते हैं. द रीज़न ओनली वाज कि उनकी परफॉर्मेंस चेक नहीं की जाती थी. आज तो स्ट्रिक्ट एक्शंस ली जाती है उनके खिलाफ, तो दे आर परफॉर्मिंग वेल. अगर वो सिस्टम नहीं होता तो हर कोई सोचता है कि हमें करना क्या है, जवाब किससे देना है, कोई पढ़े ना पढ़े हमें उसके साथ क्या है.
تو ہمیں کیا کرنا ہے, پرفارمنس چیکس, ڈیموشنز اینڈ پروموشنز کا سسٹم رکھنا چاہیے. ہر ایک جو ہیومن ریسورس ہے جو کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے اسکولس میں, وہ اپنے آپ پہ اپنے لیکچرز کو خود ہی پہلے ایویلویٹ کرے گا, اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کرے گا, تب تک تو نہیں کرے گا. یہی بات ہے. اتنی ساری اسکیمز ہے. ریسنٹلی یوتھ مشن آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس میں بہت سارا ایک اچھا خاصا فنڈنگ آ رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے. ہمارے یوتھ کو جانا چاہیے اور ان چیزوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جب تک ہم ویٹ کریں گے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب ملے گا, اس سے ڈیولپمنٹ ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہ وہاں پر رہیں اور اس علاقے کو ڈیولپ خود کرے. اگر کوئی افسر ہے کسی بھی علاقے کا, اس کو رہنا چاہیے بڑگام میں, نہ کہ اس کو چھوڑنا ہے پھر سری نگر میں جانا ہے. وہ جب سری نگر کی لگژریس لائف انجوائے کرتا ہے تو دودھ پتری کو کون دیکھے گا. یہاں کے ایس افسر ہو, IS افسر ہو, ان کو رہنا چاہیے یہاں پر, تاکہ ان کو اپروچ ملے کہ بھائی میرے لوگوں کو کیا پرابلم ہے. تو میں یہ تھوڑی سی اس میں بات بولنا چاہوں گا. یہاں کے لوگوں کو رہنا چاہیے یہاں پر, اور اپنے علاقے کے بارے میں آپ لوگوں کو سوچ رہا ہے, باہر کا آ کے کوئی سوچنے والا نہیں ہے. جو ہمارا کالج ہے, ہمارے جو پروفیسرس ہیں الحمدللہ سب بہت اچھے, کافی محنت کرتے ہیں ہمیں پڑھانے میں, ہمیں سکھانے میں. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ ہم کیا کریں, ہم وہ گین کریں یا نہیں. لیکن جو وہاں کا پرابلم ہے کالج کا, کہ ہم وہاں پہ بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے, جو کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے. کیونکہ جہاں پہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم نالج گین کر رہے ہیں, اور دور جدید چل رہا ہے, اس جنریشن میں 21st جنریشن میں کسی جگہ کالج ہو اور وہاں پہ انٹرنیٹ نہ چلے تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو آئی ریکویسٹ آور ایڈمنسٹریشن اینڈ آور گورنمنٹ کہ وہاں پہ ہمیں سہولیات فراہم کرے. گراؤنڈ کی فیسلٹی بھی بہت کم ہے ہمارے کالج میں, سو دیٹ وہاں پہ جو ہے پلیئرز ہمارے جو ہے بھائی ہے, بہنیں ہیں, کافی جو ہے ٹیلنٹڈ ہے, لیکن گراؤنڈ کی پرابلم ہے. پورے بیروا میں ہی, وہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ہمیں گراؤنڈ نہیں ہے جہاں پہ ہم کھل کے سپورٹس کا یہ کر سکے. اگر آپ ان پر دھیان دیں گے, ایک تو انٹرنیٹ نہیں ہے, انٹرنیٹ کنیکشن کافی, نیٹ ورکس کافی ویک ہے, اور گراؤنڈ, دیٹ ول بی اے موسٹ گریٹفلنس. تھینک یو. ابھی تک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ناکافی ہے. آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے یہ بہت ہی ناکافی ہے. ہم پہلے سے ہی ہمارے پاس جو آج کالجز سے, یونیورسٹیز سے لڑکے پڑھ کے نکلتے ہیں, ان کو آگے فیلڈ میں چل کر, زندگی میں چل کر اتنی ساری مشکلات ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ان کو دینے کے لیے جاب نہیں ہوتی ہے, اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کچھ کر پائیں. اگر وہ بینک سے لون لیں تو پھر ان کے پاس سکل ہوتا نہیں ہے, تو وہ اس لون کا کیا کریں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یوتھ جب ایجوکیٹ ہو کے نکلتے ہیں تو ان کے پاس کرنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے, اور ٹینشن, ڈپریشن میں مبتلا ہو کر وہ آگے چل کر ڈرگس میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں ITI کالجز کھولے جائیں, خاص کر ہمارے ڈسٹرکٹ میں. یہاں اگر ITI کالجز ہوں گے, پالیٹیکنک کالجز ہوں گے, تو ہمارے یوتھ کو اس سے فائدہ ملنے والا ہے. وہی فائدہ ہمارے نوجوانوں کو ملے گا, اور سکل ایجوکیشن میں وہ آگے چلیں گے. تو جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کو, تو ہمارا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے, آؤٹ پٹ جو ہر ایک اسکول کا ہوتا ہے, تو ریسنٹلی کچھ پریویس 2-3 سالوں سے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ اسکول سے بھی جو نتائج ہے وہ بہت اچھے آ رہے ہیں. لیکن جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں فیلڈ میں, گراؤنڈ پہ جب ہم آتے ہیں, تو پرائیویٹ اسکولز تو بہت آگے ہیں. چونکہ میں بھی پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھاتا ہوں, تو بہت ساری محنت, بہت ساری لگن, ڈیڈیکیشن, اور پلس جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان پرائیویٹ اسکولوں میں ہر پیرنٹ اور جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. وہیں اگر آپ دیکھو گے کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہوتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اس کے برعکس بھی کہ وہاں پہ اگر اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, لیکن استاد جو ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن کوئی چیز ہے جس سے ہمارے پاس جو اس کے نتائج ہونے چاہیے. کیوں آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں, ہر ایک انسان آج کے معاشرے کا چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ہی ایڈمٹ کراؤں. تو وجہ ہے کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہے جس کی طرف ہمارا جو دھیان ہے, ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے. اے دوست کرو ہمت, کچھ دور سویرا ہے, اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو, تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو, جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. چونکہ ہم
बहुत सदियों से देखते आ रहे हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि जो नॉर्मल एजुकेशन वो तो सब पढ़ते हैं यहाँ, ठीक। दूसरी बात, क्वालिटी एजुकेशन जो मिलनी चाहिए एक बच्चे को वो नहीं मिलती है। एक होती है क्वालिटी एजुकेशन और दूसरी क्वांटिटी। जो क्वांटिटी में पढ़ते हैं वो सब पढ़ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक क्वालिटी एजुकेशन हो। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस पे, स्पेशली मैं यहाँ की बात करूँ, क्योंकि जो लोकल्स है यहाँ के दूध पथरी के लोकल्स, उनको गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम द क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चलने के लिए जूते नहीं है, लेकिन उनके पास एक ही चीज़ है, वो है टैलेंट। अगर वो उस टैलेंट, वो भी IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, KS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, बट उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है जो उनको मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट सारे लोग सुनते आए हैं कि मॉडल हायर सेकेंडरी बनाई गई, मॉडल हाई स्कूल बनाया गया। गवर्नमेंट को एक इनिशिएट लेना चाहिए, हमें प्राइमरी स्कूल्स को ना मॉडल प्राइमरी स्कूल्स बनाने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट साइड में अगर हम छोटी एज में बच्चे को सही तरबियत, सही स्किल देंगे, तब जाके वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पे कुछ देखेगा। पहले वो एक नॉर्मल स्कूल बेचारा पढ़ता है, फाइनली आप उसको हायर सेकेंडरी बोलते हो, मॉडल हायर सेकेंडरी, वो नई चीज अचानक देखता है। तो फोकस करना है प्राइमरी सेक्शन पे। नाज़रीन, मेरा अगला सवाल है वुमेन एम्पावरमेंट पे। यहाँ के अवाम से जानना चाहेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या कुछ कहना है इनका। अल्लाह ताला ने औरत को पहले अजीम मुकाम दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जब माँ है तब हम IAS IPS जो भी है दुनिया में, जो भी है, माँ मानी जाती है कि वो एक खुदा से कम नहीं। और जहाँ तक चाहिए हमारी बहनों माओं की इज्जत हर फील्ड में आगे होनी चाहिए, मस्ट भी, और है भी, ऐसा नहीं है। आज आप रेट निकालिए, कहीं पे भी जाके आप देखिए वुमेन एम्पावरमेंट कितना जरूरी है। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है ना, तो वो पूरा समाज पढ़ा लिखा होता है, पूरा खानदान पढ़ा लिखा होता है। खाली बाप का पढ़ना, मर्द का पढ़ना, सिर्फ मर्द का पढ़ना है, लेकिन एक माँ का पढ़ना, एक बेटी का पढ़ना, पूरे खानदान का पढ़ना है, तो मस्ट बी एजुकेटेड। और ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं दुनिया के टॉप 10, अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, तो शायद आपने अगर नाम सुना होगा, चतुर्वेदी जो जेट पायलट है, जेट उड़ा रही है, 28 ईयर्स ओल्ड, एक औरत ही है ना। आप मुझे बताए दुनिया के, आप नाम नहीं, इंदिरा गांधी जी एक औरत ही थी। अगर हम इस विषय में देखेंगे, इस और देखेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम चाहते हैं जितनी भी हमारी यहाँ पे बहनें बेटियाँ बैठी है, हम चाहें ये ज़्यादा तरक्की करें, और इनका हक बनता है। इन्हें अल्लाह ताला ने भी हक दिया है, समाज ने भी हक दिया है। किसी को कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी बेटी को बोलेंगे नहीं 8 क्लास पास कर बस हो जा, ऐसा होगा नहीं है। क्योंकि ये इनमें, औरत में अल्लाह ताला ने एक ऐसी खास चीज़ रखी है, सहनशीलता ज़्यादा होती है, सब्र। विजिलेंटिबस, नॉन डॉर्मेंटिबस, जुरा सविनियंट। अगर किसी के साथ भी कोई भी जाति हो रही है, वो आराम करेगी, कानून आएगा, कोर्ट देखेगा, मेरा बाप मुस्तहक है, ये एजेंसी ये कर रही है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी कंट्री हो, यू हैव योर ओन लिप्स, यू कैन रेज योर वॉइस against any injustice, whatever you have, and institutions are facilitating. Even though if we have dullards, we have handicapped, we can say mentally retarded, वो कोड कर सकते हैं अपनी जस्ट के लिए। बट आई एम टॉकिंग विथ नॉर्मल्स। आपके साथ भी इनजस्ट होगी। रोज हम शोज देखते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, we are talking about NDPS एक्ट, Narcotics Substances, Psychotropic Substances Act 1986, or we can say COFTA Act. We are talking about acts. Go through it. You are lettered, you are educated. Fingertips से है procedure कहाँ क्या कर रहे हैं. Don't go for judiciary. Don't go for institutions. You have right, you have authority, and you have execution power within your fingertips. अगर कोई अनपढ़ है, unlettered है, इस 21st एज में भी, 21st सेंचुरी की एज में भी, देन एक बंदा दूसरे को फैसिलिटेट करो। वुमेन एम्पावरमेंट पर जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर पूरे दिन भी बात की जाए तो बहुत कम है। मैं यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि वुमेन एज ए वुमेन एक सबसे, मैं कहूँगा कि बेस्ट टीचर है। अगर दुनिया में टीचर है तो माँ ही है, एक वुमेन ही है। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि अगर सारे फील्ड्स में नहीं तो कम से कम एजुकेशन फील्ड में
एजुकेशन फील्ड में 70% रिजर्वेशन वुमेन को मिलना चाहिए, ताकि ये जो हमारा समाज है ये प्रॉपरली एजुकेट हो सके, क्योंकि मेरा मानना है कि इससे अच्छा टीचर कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बात तो सभी करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो सबसे पहले हमें पहले अपनी माँओं की, अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करनी है। Then we can talk out of that कि women empowerment. In nutshell, I would like to say, अगर आप सही में अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को इज्जत देंगे, अहमियत देंगे, make them feel special, उनको फ्रीडम देंगे, तो वो आपके घर को जन्नत बना सकती है। क्योंकि एक औरत पे सूरे निसा उतरी है, पूरी की पूरी सूरत उतरी है। सो जस्ट आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि एक औरत का मकाम क्या है, क्योंकि रब ने उसे इज्जत दी है। घरों में औरतों से गलतियां हो भी सकती है, सो उसे सपोर्ट करे, उसे ये ना कहे यू आर अ गर्ल, व्हाट यू हैव डन, यू हैव मेक मी एम्बेरेस्ड, क्योंकि ये वर्ड ज्यादातर हमारे सोसाइटी में क्या है, औरतों पर यूज होता है। बाहर जाके हर कोई मर्द, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम, कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वो ये वगैरह, लेकिन घर में अगर बेटा और बेटी गलती करते हैं, अगर बेटा गलती करता है, स्टिल 21st सेंचुरी में भी ये कहा जाता है लेट इट गो, ही इज अ बॉय, तुम्हें तो सोचना चाहिए था यू आर अ गर्ल। यस, आई एम अ गर्ल, इफ आई हैव डन समथिंग रॉन्ग आई विल डू तौबा इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, आई विल रिपेंट। अगर वो माफ कर सकता है ना, व्हाई डोंट यू? जब लड़की घर में खुद को स्पेशल फील करेगी, फिर उसको कॉन्फिडेंट आएगा बाहर जाने का, बोलने का। जब वो घर माँ बाप के सामने 2 लफ्ज नहीं बोल सकती, तो बाहर जाके खाक बोलेगी क्या? Why youth goes towards the drugs? First thing, इसका जो जिम्मेदार है वो है अपने पेरेंट्स। ठीक, मैं इसको मजीद इलाबरेट नहीं करना चाहूँगा, वो आप खुद समझेंगे। ठीक, हर एक पंचायत हलके में इस तरह जो भी ड्रग्स, जो भी यूथ ड्रग्स में इन्वॉल्व है, वो हर एक ईच एंड एवरी पंचायत हलके में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे हम स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले क्या हमें करना है कि यहाँ पे इंडोर की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात अगर मैं करूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम वो एक डिस्ट्रिक्ट है जो इस वक्त स्पोर्ट्स में पहले नंबर पे है, ये सब जानते हैं। और उसमें जो बीर जोनवा है, ये बडगाम में जोन फर्स्ट में आ रहा है। जितने भी प्लेयर्स डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हम देखें, चाहे मार्शल आर्ट या क्रिकेट या अदर स्पोर्ट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे पास जो इस वक्त बच्चे खेलते हैं। मगर प्रॉब्लम सर ये है कि इस वक्त अगर हम देखें कि बीरवा की बात में कर रहा हूँ कि हमने रिसेंटली 2 साल पहले हमने दूध पाथरी साइड से आरिजल में हमने यहाँ पे क्लब स्टार्ट किया है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 2018 में आया तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स जीरो था, यहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई एलिमेंट नहीं था। हम देखें कि अगर बच्चा पैदा होता है तो वो क्रिकेट कम से कम खेलता है, यहाँ पे क्रिकेट का भी वजूद नहीं था। जो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो तो बिल्कुल भी कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स को यहाँ पर लोग एजुकेशन समझते ही नहीं, जो कि एक बड़ी एक बैकबोन है एक एजुकेशन में। तो हमारे बच्चे जब भी पढ़ते हैं, उनके एग्जामिनेशंस का जब टाइम आता है, उसी वक्त डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के नेशनल चैंपियनशिप्स आते हैं और हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को क्या आप नहीं जा पाओगे। रीज़न क्या है कि पहले पढ़ो, क्योंकि ये क्लैश हो जाता है जब हमारे बच्चों को बाहर जाना होता है, उस वक्त उनके एग्जामिनेशन होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट को समझना ज़रूरी है, या तो इसको एक ही डिपार्टमेंट बना दो और इसको सेक्शन वाइज बांटो कि भाई आप लोगों को पढ़ना है और खेलने का टाइम ये है। जब बच्चा अच्छा खेलेगा नहीं तो आगे क्या परफॉर्म करेगा? तो जिस चीज़ की वजह से फिर बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। जब बच्चे ने खेला ही नहीं, अगर बच्चा फिटनेस पे काम करेगा, खेलेगा कंटिन्यूसली, तो मुझे नहीं लगता कि उसको टाइम मिलेगा उन बुरी चीज़ों के लिए जो भी सोशल लेवल्स अभी घूम रहे हैं। 2 साल पहले यहाँ पे मैंने एकेडमी स्टार्ट किया है। बच्चे के पास जब मैंने देखा है कि बहुत सारे टैलेंट्स था। अब ये मसला है कि यहाँ पे जो बारिश की वजह से हम देखेंगे, या अगर हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कोई कैंप करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, लाइक अकोमोडेशन की बात है। वो अगर हम टेंट्स की बात करेंगे, सर ने बोला कि अगर अकोमोडेशन नहीं होगा तो कम से कम टेंट्स में भी हम कोई काम कर सकते हैं, कोई इवेंट्स। मगर मसला सर ये है कि यहाँ पे बारिश दिन में कम से कम 3-4 बार पड़ती है। तो इसके हिसाब से अभी हमने यहाँ पे जो हमारी जो मीटिंग थी, अभी बारिश हुई है तो हमने ये सारा कैंसिल किया, फिर वहाँ पे गए हैं। अगर कल हमें, क्योंकि स्पोर्ट्स हम देखेंगे स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन होता है,
कुछ भी ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन में अगर हम देखें कि अगर हम कोई इवेंट्स करेंगे, इंडोर के हाल अगर होगा, कोई भी बारिश होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, हम इंडोर में हम अच्छे से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं या कोई भी इवेंट्स कर सकते हैं। सपोर्ट्स के हवाले से अगर हम बाकी स्टेट्स में देखेंगे, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल मतलब कि गेम्स हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी या बाकी गेम्स हो रहे हैं, वहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल्स के जो गेम है वो वहाँ पे खेली जाती है। हालांकि हमारे पास भी यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है श्रीनगर में, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई इंटरनेशनल गेम हो ही नहीं रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की जो गेम है, चाहे आईपीएल मैचेस है या बाकी क्रिकेट है या हॉकी वगैरह बाकी गेम्स है, तो वो भी यहाँ पे आए, ताकि यहाँ पे एक इन्वायरमेंट एक ऐसा बने ताकि जिससे हमारे युवा है वो ज्यादा एंगेज हो जाए इस सपोर्ट से, उनमें भी एक शौक बढ़े। और यहाँ पे दूसरी मेरे भी एक बहन बोल रही है थी यहाँ पे कि सिनेमा की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि मैं एज ए मुस्लिम मैं सिनेमा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। तो इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिनेमा है इसको पहले मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब कि जो सिनेमा है यहाँ पे 1990 से पहले की अगर हम बात करें, यहाँ उस टाइम भी सिनेमा थे, तो मुझे नहीं लगता था कि उससे कुछ हालात यहाँ का माहौल खराब हो जाए। अगर माहौल खराब होने की बात हम करेंगे तो यहाँ पे आज हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन है, उससे भी फिर हालात खराब होते हैं। बात से मुतफिक है कि अगर सिनेमा हॉल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो जो हमारा यूथ है, टैलेंटेड यूथ है, उनको भी रोजगार मिल सकता है। चाहे अगर हम देखेंगे हमारा बहुत सारा यूथ जो है जो एक्टिंग का शौक रखते हैं, उस सिनेमा हॉल्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होना, उससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। बिल्कुल ऑब्वियसली मिलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। या यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिल्म की शूटिंग जो होगी, अगर हमें दूध पत्र को मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है, मतलब कि टूरिस्टों को बताना है कि दूध पत्र भी एक जगह है कश्मीर में, तो उसके लिए जरूर है कि जो यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हो रही है, अगर यहाँ पे कोई किसी फिल्म की शूटिंग हो जाए तो ऑब्वियसली मतलब कि ये भी हाईलाइट हो जाएगी, मतलब कि ये जो जगह है ये भी हाईलाइट हो जाएगी, यहाँ पे भी टूरिस्ट आएंगे। फिर हमें मतलब कि किसी दूसरे तरीके से एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा, या खुद ब खुद एडवर्टाइज हो जाएगा इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट कनेक्ट दैट विद रिलीजन। आपने अगर नोट्स किया, यहाँ पे सभी थे, सब लोगों ने अगर नोट्स किया होगा तो मैंने लास्ट में बोला बीइंग अ मुस्लिम। डिड यू नोट्स दैट? मैंने लास्ट में बोला, पहले मैंने नहीं बोला। तो सिनेमा की बात मैंने, और ये बात आपने कही कि फोन्स की, हाँ, तो या इट्स अप टू यू। हमने लाइफ मिली है, हाँ, अब लाइफ मिली है, टेक्नोलॉजी की तो छोड़ो, हमने लाइफ मिली है, नाउ इट्स अप टू अस, हम कैसे इसे यूज करें। आजकल हमारे यूथ जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है या बहुत सी जो है गंदगी में इन्वॉल्व है, हाँ, तो अब यहाँ पे सिनेमाज नहीं है, लेकिन वो स्टिल है कि नहीं। सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सिनेमाज। तो मैंने इसे कनेक्ट नहीं किया था रिलीजन से, क्योंकि मैं वो लास्ट में बोला। बचपन से हम स्पोर्ट्स में हैं। मैं इस भाई को ये कहना चाहता हूँ, अभी इसने बोला इंडोर स्टेडियम्स के बारे में इसने बात की है। जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट जो चल रही थी, उस दौरे में सबसे ज्यादा इंडोर स्टेडियम्स हर डिस्ट्रिक्ट में बन चुके हैं। जो रियलिटी हो वो बोलनी चाहिए। अगर हम बांडीपुरा जाएंगे वहां पे भी इंडोर स्टेडियम बन चुका है, अगर हम बडगाम जाए वहां पे भी इंडोर स्टेडियम बन चुका है, और फैसल भाई की दूसरी शादीपुरा साइड से वहां पे भी इंडोर स्टेडियम बन चुका है। वो जितने भी यहाँ पे इससे पहले हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने घर बनाए हैं। अब देखिए जो हमारा स्पोर्ट्स है, हमें पहले देखना है हमें कहां पे कब से स्पोर्ट्स यहां पे बढ़ गया। रियलिटी बताओ। हम एक दूसरे के बारे में, ये बंदा बोलता है सिनेमा, वो बोलता है स्पोर्ट्स, हमें रियलिटी बतानी चाहिए। मैंने अभी इससे पहले ये बात बोली, यहां पे मैं क्यों बार बार बोलता हूं स्पोर्ट्स काउंसिल। अगर आप चाहते हो यहां पे स्पोर्ट्स बढ़ना चाहिए,